Morning student, today we are discussing chapter first, the fundamental unit of life, class 9. And the fundamental unit of life, it means cell. And cell को सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब एज द रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया 1665. ओके, और इन्होंने क्या देखा कि जो कॉर्क रिजेंबल लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्क क्या होता, इट इज द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल. तो इट इज द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल, इट मीन्स कॉर्क. So the cork resemble like structure, and these structure as a honeycomb like structure. This type of picture means as the honeycomb like structure. At each compartment it is also called cell. एक कंपार्टमेंट को जो नाम दिया, क्या दिया, सेल. ओके, then as the Robert Hooke 1665, then Leeuwenhoek, first living cell in pond water. Robert Brown, he is discovered nucleus. Okay, then nucleus are present inside the cell. Purkinje, protoplasm. Slide and Swan, he is described cell theory, and last as a Virchow. So these different scientists belong to a cell and cell theory. तो स्टार्टिंग में जो इसकी स्टार्टिंग कंडीशन क्या दी, जो इंट्रोडक्शन दिया गया, सेल. And cell, it is the basic unit of life. Okay, so it is the basic unit of life. Then what are living organisms made up? Living organisms made up किससे होते हैं? तो living organisms made up cell. Cell के बाद क्या, tissue, then क्या, organ, इसके बाद organ system. So cell, it is the smallest unit of life. Okay, inside a cell क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. तो लाइक एज द ऑनियन पील, एक पिक्चर भी इसमें दी गई है ऑनियन पील की. इस टाइप की पिक्चर दी गई है. इसकी आप स्लाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, देन एज द न्यूक्लियस, then as the, it is also got cell. Okay, so this picture indicate as the onion peel slide. ये पिक्चर इंडिकेट कर रही ऑनियन पील स्लाइड. Then what are these substance? तो maybe as the some as the small, some as the large. Then इसमें एक बॉक्स दिया गया, पेज नंबर 58, और वहां पे क्या दिया, डिफरेंट साइंटिस्ट बिलोंग टू सेल एंड सेल थ्योरी. जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट क्या इसमें आएगा, रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, लीवेनहॉक. लीवेनहॉक डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल, ओके, इन पॉन्ड वाटर. देन एज द रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. पुरकिंजे डिस्क्राइब प्रोटोप्लाज्म. Then as the Slide and Swan, he is described cell theory, and last as the Virchow. So these different scientists belong to the cell and cell theory. अब यहाँ पे आता है unicellular and multicellular. Uni means one, cellular means cell. The organism present one cell, it is called unicellular, like amoeba, paramecium. Okay, and multicellular, multi means many. Cellular means cell. The organism present many cells. It is called multicellular organism. Like as human being. Plants, higher plants. So as the higher plants and human being, it is the example of multicellular. Then some picture as a depict. कुछ picture और भी दी गई है. Then as the first smooth muscle cell. Smooth muscles. Okay, then as the blood cell. Next as the nerve cell.
neurons, it is the unit of nervous system. And neurons, it is the largest cell in our body. Then this picture indicate dendrites. This picture indicate cell body. Then axon. And last में यहाँ पे है nerve ending. Then as the ovum cell. Next as the bone cell. Next sperm cell. And last as the fat cell. These are different type of cell present in our body. Okay. Then as the unicellular and multicellular. Unicellular organ present one cell. So all the function involve only one cell. Like as digestion, respiration, excretion, circulation. But multicellular organism present many type of cell. Like human being. So multicellular organism has the different cell has the separate type of function. हर सेल का फंक्शन क्या सेपरेट है. लाइक मसल सेल है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नर्व सेल ट्रांसमिटेड ऑफ मैसेज, ब्लड सेल. Okay, so as a human being present different cell and these different type of cell has a different type of function. बॉडी में क्या अलग अलग सेल्स होती है, तो हर सेल्स का क्या होता है अलग अलग डिफरेंट फंक्शन. अब इससे क्वेश्चन 2 पुट अप किए, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. तो यहाँ पे आपने बताया हुआ है रॉबर्ट हुक. तो यहाँ पे आप आंसर राइट भी कर सकते हैं. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 6065. देन हाउ he observed Koch's rice with the help of self-designed microscope. Then as the small little compartment, and these small compartment it is called cell. Then why is cell called the structural and functional unit of life? 2 point दिए structural and functional. The structural unit of life because the union multicellular organisms are present as a specific type of structure and cell perform different function. So it is also called structural and functional unit of life. Okay. So each living cell has the capacity to perform certain basic function. हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Okay. That are characteristic of the all living forms. लिविंग सेल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन. लिविंग सेल का जो स्पेसिफिक है बेसिक फंक्शन फॉर्म करते हैं. देन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का क्या होता है अलग अलग फंक्शन. लाइक एज द ह्यूमन बॉडी में क्या हार्ट होता है और हार्ट का वर्क क्या होता है ब्लड को क्या करना पंप. देन एज द स्टोमक का वर्क क्या हो रहा है डाइजेस्ट फूड मटेरियल क्या कर रहा है डाइजेस्ट कर रहा है. सो डिवीजन ऑफ लेबर आल्सो सीन जनरली सो ऑब्जर्व करते हैं विद इन कहा करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ओके. दैट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इज नोन एज सेल ऑर्गेनिज्म. बॉडी में सपोज डाइजेशन हो रहा, रेस्पिरेशन हो रहा, एक्सक्रीशन हो रहा, तो इनके लिए इनके बेस पे क्या होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल कंपोनेंट्स होते हैं. सच मेकिंग एज द न्यू मटेरियल इन द सेल लाइक एज द क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल. बॉडी के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं क्लीन करते हैं. सो दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट यूनिसेलुलर दिया है देन मल्टी सेलुलर. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ओनली वन सेल. ऑल द फंक्शन इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ सेल. बॉडी की जितनी फंक्शन है वो इन्वॉल्व हो रही क्या ओनली वन सेल से. देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मेनी सेल एंड परफॉर्म एज द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन.
so as the division of labor observed as the unicellular organism. Okay guys, अब यहाँ पे आता है व्हाट इज सेल मेड ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. दो पॉइंट है, व्हाट इज सेल मेड ऑफ एंड नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. तो जनरली सेल में जो मेडअप होता है क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस. और थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म. अब यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो क्या बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. एज द नेक्स्ट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट दैट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मीन्स इसका मीन्स होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स. सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर आने देती है, बट जो नॉन सिलेक्टिव पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं. जिसका इंपॉर्टेंस क्या है, ओनली सिलेक्टिव पार्टिकल्स इनसाइड द सेल. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ or permit the entry and exit of some material and prevent movement of some other material. सिर्फ only selective particles inside the cell, बट जो अनसेलेक्टिव पार्टिकल्स है वो सेल के अंदर नहीं आते हैं. एक फिल्टर की तरह वर्क करता है, छन्नी होती है फिल्टर, उसमें छन्नी में क्या होता है, जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स है वो जो सिलेक्टिव स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या नीचे पहुंच जाते हैं, बट जो लार्जर पार्टिकल्स है ऊपर रह जाते हैं. तो सेम कंडीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे हो रहा है. सिलेक्टिव पार्टिकल्स तो आपके इजिली अंदर आ रहे हैं, बट जो अनसिलेक्टिव पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं. ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स. पूछ सकते हैं, गिव रीजन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स because only selective particles inside a cell, but unselective particles cannot inside a cell. जो unselective particles है वो सेल के अंदर नहीं आ पा रहे हैं. Okay guys, next, some substance like carbon dioxide और oxygen, अब इनका मूवमेंट हो रहा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो लिक्विड है उसका मूवमेंट हो रहा with the help of osmosis. ये दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो फर्स्ट क्या, डिफ्यूजन, और सेकेंड क्या, ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन प्रोसेस इट इज ऑकर्स एज द गैसेज, एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस इट इज ऑकर्स एज द लिक्विड. क्लियर. तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. किस प्रोसेस द्वारा मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे क्या है, डिफ्यूजन. देन डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस डिफ्यूजन मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस आर, जो मूवमेंट क्या, द सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. सब्सटेंस मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां से कहा कि वो मूवमेंट क्या है, जहाँ पे कंडीशन क्या कम है. The substance of movement region of high concentration to the region of low concentration, it is called diffusion. जो सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन, उसे हम क्या बोले, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. ओके गाइस, so diffusion means the substance of movement from a region of high concentration to the region of low concentration. It is the spontaneous movement. एक ऐसी प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस.
Then something similar to this happens in the cell. For example, some substance like carbon dioxide, and which is cellular waste and required be the excrete out by the cell accomplishing high concentration inside the cell. तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, मतलब जहां पे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से इनका मूवमेंट कहां पे होगा, जहां पे कंसंट्रेशन क्या लो है. तो कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू द इनसाइड द सेल. ओके, तो इसका जो सपोज गैसेज है, गैसेज का मूवमेंट क्या हाई कंसंट्रेशन से क्या लो कंसंट्रेशन. यदि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है तो जो इनसाइड के मॉलिक्यूल्स कहा जाएंगे बाहर. इतना समझ में. सपोज बॉडी के इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है और बाहर यदि लेवल कम है तो इनसाइड के मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंचे, बाहर. और यदि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इनसाइड तो आउटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंच जाए, इनसाइड द बॉडी. तो इट इज डिपेंड फॉर द कंसंट्रेशन. इट डिपेंड किस पे कर रहा, कंसंट्रेशन पे. आउटर कंसंट्रेशन क्या है या इनर कंसंट्रेशन क्या है. अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इनसाइड मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, आउटसाइड. एंड इफ आउटसाइड कंसंट्रेशन मोर देन दीज मॉलिक्यूल्स आर एंटर इनसाइड द सेल. तो इट इज डिपेंड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. इट डिपेंड किस पे कर रहा, कंसंट्रेशन मीन्स पार्टिकल्स का कम या ज्यादा. Clear? So carbon dioxide move out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration. Then outside the cell by the process of diffusion. Same condition. Similarly, oxygen enter the cell. Oxygen कहाँ पहुँच रही है, inside the cell by the process of diffusion. When the level of concentration of oxygen इनसाइड द सेल डिक्रीज, जब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो द कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज. और जब इनसाइड द सेल कोई गैसेस क्या कम है तो आउटर पार्टिकल्स कहाँ पहुंच है, इनसाइड द सेल. तो यहाँ पे क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो यहाँ पे क्या, दीज गैसेज आर मूवमेंट आउटर पार्टिकल्स इंटर इनसाइड द सेल. तो यहाँ पे जो टॉपिक क्लियर हुआ है, यहाँ पे कैसे मूवमेंट करे बाय द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो मेन बात किसकी दी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सेल, इनसाइड द सेल. तो आउटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंचेंगे, इनसाइड द सेल. और जब अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरमेंट तो अंदर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर. तो यहाँ पे बोल सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर मूवमेंट इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, और चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. आप यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना और सब्सक्राइब का बटन दबाइए जिससे आपको और भी अच्छी अपडेट मिलती रहेगी. ओके स्टूडेंट, और नोट्स आप बनाते रहिए. आज ही स्टार्ट किया आपका चैप्टर फर्स्ट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. कॉपी लीजिए, आज की डेट भी आप मेंशन कीजिए, आज 6 अगस्त है. चैप्टर फर्स्ट राइट कीजिए इसमें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. एनसीईआरटी बुक आप लोग रख लीजिए पास में, इससे आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी. और फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी. अभी आज ही बच्चों ने बोला कि मैं इसमें सिलेबस अपडेट किया था, वहाँ पे मैंने सेल कर दिया था तो बच्चे मिसयूज हो रहे थे. तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसे हम सेल ही बोलते हैं. ओके, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इट मीन्स सेल. तो सबसे पहले टॉपिक आएगा सेल. एंड सेल को डिस्क्राइब किसने किया, रॉबर्ट हुक. बट किसमें, कॉर्ड थिन स्लाइस. और फर्स्ट टाइम सेल इन पॉन्ड वाटर इसे डिस्क्राइब किया ल्यूवेनहॉक ने. तो सबसे पहले क्या आपका सेल आएगा. एंड सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ.
It is the basic unit of life. It is the fundamental unit of life. Then as the unicellular and multicellular, एक एक्टिविटी भी दी है इसमें ऑनियन रूट टिप की. ऑनियन रूट टिप की हम स्लाइड बनाते हैं. सबसे पहले ऑनियन की लेयर आप अलग करेंगे. इसकी शायद मैंने एक्टिविटी पहले भी करवा दी थी आप लोगों को. नहीं आप लोगों ने की है तो अपडेट आपको ये एक्टिविटी करवाई जाएगी. तो सबसे पहले इसमें ऑनियन लाइक एज द ऑनियन पील लेयर आपने अलग की. एक ग्लास स्लाइड होती है. ग्लास स्लाइड में क्या रखें? ऑनियन पील. स्टैनिंग करते हैं और इसके बाद यहाँ पे रखते हैं. स्टैनिंग के बाद ग्लिसरीन. देन एज द कवर स्लिप. कवर स्लिप इस टाइप से रखी जाती है कि इससे बबल्स ना आने पाए. और फिर इसको आप माइक्रोस्कोप में देखें. और यदि माइक्रोस्कोप में देखने पे आपको लाइक इस टाइप की स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रही है तो आपकी स्लाइड क्या है? सही है. और इन्हें बोलते हैं हम सेल. ईच कंपार्टमेंट ओनली वन कंपार्टमेंट को क्या बोल सकते हैं? सेल. ओके. इसके बाद आप राइट करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक एज द रॉबर्ट हुक, देन एज द लीवेनहॉक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, स्नाइडर स्वान. ओके. तो इन सभी को आप वहां पे देखिए. इसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. और अभी जो बताया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या इसी को बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स because it allow only selective particles inside a cell, but unselective particles cannot inside a cell. सिर्फ selective particles अपडेट होते हैं. ओके. और बाकी कुछ अपडेट भी मैं आपको स्कूली ऐप में अपडेट कर दूंगा, जो आपको हिंदी इंग्लिश का ऐप है, वहां से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं कुछ टॉपिक. So as the plasma membrane, it is called selective permeable membranes. Then as the gases are movement by the process of diffusion. Diffusion, it is the spontaneous process. The particles are movement region of high concentration to the region of low concentration. Different gases like carbon dioxide are movements outside a cell by the process of diffusion, because inside concentration are more than outer environment. So carbon dioxide movement outside a cell. Then oxygen are inside a cell because inside concentration low compared to the outer environment. Clear? So gases are movement by the process of diffusion. Gases जो movement कर रही है by the process of diffusion. Then water movement by the process of osmosis. तो यहाँ पे जो कंपेयर किया gases and then second क्या? वाटर. ओके गाइस, इस टॉपिक को आप स्टडी कीजिए और जहाँ पे आपको डाउट है मैसेज कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा. नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए. आपको एवरीडे रोज कुछ ना कुछ टॉपिक मिलते रहेंगे और जहाँ डाउट है डाउट पूछते रहिए. ओके स्टूडेंट.